مانگا منڈی کے علاقہ تالاب سرائے میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں صلح کروا دی گئی۔ مانگا منڈی تفصیلات کے مطابق اعظم شاہ اور اللہ نواز گروپ کا آپس میں زمین کے تنازع پر 4 سال سے جھگڑا چل رہا تھا۔ چودھری شریف بھولا گجر نے اپنے ڈیرا پر بلا کر دونوں پارٹیوں کو 4 سال سے درینہ مسئلہ حل کروا کر جفیاں ڈلوا دی، جس میں سلیم گجر، شبیر گجر، ماسٹر خالد، رانا عمران، شوکت جٹ، اسماعیل گجر نے شرکت کی۔ دونوں پارٹیوں کی صلح کے بعد ڈیرے پر مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ دونوں گروپوں کے درمیان ماضی میں سب کچھ بھلا کر آئندہ اتفاق کے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیا۔ ایس پی صدر ڈاکٹر غیور احمد خان کا ویڈیو وائرل ہونے پر فوری گرفتاری کا حکم۔ سندر پولیس کی کارروائی۔ سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والے ملزمان غلام قمر اور اسد علی گرفتار۔ ملزمان نے اسلحہ اور شراب کی نمائش کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی۔ ملزمان کے قبضہ سے رائفل، گولیاں برآمد۔ مقدمہ درج۔ ڈاکٹر غیور احمد خان، سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش، ہوائی فائرنگ کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈاکٹر غیور احمد خان، ایس پی ڈاکٹر غیور احمد خان کا SHO سندر، رانا مجاہد اور ٹیم کو شاباش۔ سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش پر پابندی عائد ہے۔ ایس پی صدر ڈاکٹر غیور احمد خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ZTV نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ سندر لوہارم والا کھوہ میں کریانہ سٹور میں ڈکیتی کی واردات۔ 3 نقاب پوش مسلح ڈاکو دکان میں داخل ہوئے۔ ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر دکاندار کے مالک سے 5,30,000 روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات کی CCTV فوٹیج نجی نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکو اسلحہ کی نوک پر منشا کریانہ سٹور کے دکاندار کا صفایا کر گئے۔ 15 کی کال پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، تحقیقات شروع کر دی۔ لاہور کرائم رپورٹر سے تھانہ کوٹ لکھپت لاہور کی حد میں حوث کی خاطر معصوم بچیوں سے نازیبہ حرکات کرنے والا اسفاق ملزم گرفتار۔ SHO کوٹ لکھپت عمران شیخ کی 15 کال پر بروقت کارروائی۔ 2 بچیوں سے نازیبہ حرکات کرنے والا ملزم بوستان کالونی سے گرفتار۔ 9 سالہ فاطمہ اور 10 سالہ نور فاطمہ ٹال سے لکڑیاں خریدنے گئی۔ ملزم فیاض نے دونوں بچیوں کو ورگلایا، قریب پلاٹ میں لے جا کر نازیبہ حرکات کی۔ قصور بار کا وکلاء کے خلاف جھوٹی FIR کروانے پر احتجاجی مظاہرہ۔ قصور ڈسٹرکٹ بار سے DPO آفس گیٹ کے باہر ریلی۔ پولیس کے خلاف نعرے۔ پنجاب بار کونسل نے بھی آج ہڑتال کی کال دی تھی۔ قصور بار اور پولیس کے درمیان کشیدگی شدت اختیار کرتی جا رہی۔ قصور بار کے صدر فہد اکرم کے مطابق پولیس نے ہمارے وکلاء کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے اور گرفتار بھی کیا۔ وکلاء اور پولیس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پولیس نے اگر کوئی کارروائی کرنی تھی تو قصور بار کے ممبران کو اعتماد میں لیتی، مگر ایسا نہیں کیا، جس پر قصور بار میں ہفتے کے دن عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے اور آج بھی پنجاب بار کونسل کی کال پر عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے۔ صدر بار فہد اکرم اور جنرل سیکرٹری بار احمد لطیف کی قیادت میں وکلاء بار روم سے احتجاج کرتے ریلی کی شکل DPO آفس گیٹ پر پہنچے۔ وکلاء نے پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ وکلاء نے IG پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے وکلاء کے خلاف جو جھوٹی FIR درج کی گئی ان کو خارج کیا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ضلع دادو عبدالرحمان چانو کی رپورٹ کے مطابق تحصیل میہڑ کے کاچو کے علاقے فرید آباد میں طوفانی بارش۔ کاچو کی پہاڑی پٹی سے پانی کا بہاؤ جاری۔ علاقہ مکین خوشی میں گھروں سے نکل آئے۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ پہاڑی پٹی سے بہاؤ جاری ہونے سے نئی مزارانی نئی دلان کا بہاؤ ہونے سے میہڑ شہر، عبداللہ شاہ، گودریو، گڑتل، موجھڑ سمیت دیگر گاؤں کے راستے عارضی طور پر منقطع ہو چکے ہیں، جبکہ ریت سے بھرا ٹریکٹر ٹرالی سمیت الٹ گیا، جس میں ڈرائیور اور مزدور موزانہ طور پر بچ گئے۔ سڑکیں ناکارہ ہو گئی۔ گاڑیوں کو آنے جانے میں دشواری پیش ہو رہی ہے اور دوسری جانب کاچو کے گاؤں گڑتل کے رہائشی راجہن خان رند، ڈاکٹر علی جان رند، عبدالغفور رند نے کہا ہے کہ کاچو میں بارش کے باعث کاچو کا علاقہ مکمل طور پر سرسبز ہو جائے گا اور جوار، مکئی، باجرے، تل اور مونگ کا فصل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کاچو کا علاقہ آباد ہونے سے یہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں بھاور نگر کی تحصیل چشتیاں سے۔ ہمارے اینکر پرسن محمد وسیم بھٹی کی رپورٹ کے مطابق چشتیاں بلدیہ چوک میں 5 اگست یوم استحصال کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انتظامیہ سول سوسائٹی کی ریلی کی قیادت DSP چشتیاں اور اسسٹنٹ کمشنر نے کی۔ ریلی بلدیہ چوک سے شروع ہو کر بخاری چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء نے بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ملک بھر کی طرح کروڑ پکا میں بھی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ انسانی قیمتی جان بچانے والے ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ مہنگی ادویات نے شہریوں کا جینا انتہائی مشکل کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں کروڑ پکا سے حسنین خان کی رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح کروڑ پکا میں بھی مہنگائی کے باعث اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ انسانی قیمتی جان بچانے والی ادویات کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔
महंगी अद्वियात ने गरीब आदमी के लिए इलाज भी मुश्किल बना दिया है। बजट की मंजूरी के बाद पैनाडोल, ब्लड प्रेशर और दीगर अद्वियात की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है। इसी तरह शुगर की इंसुलिन में 15 से 20% इजाफा हो चुका है, जिसके बायस शहरी काफ़ी मायूस दिखाई देने लगे हैं। शहरियों के साथ साथ दुकानदारों ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इंसानी कीमती जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें कम की जाएं, ताकि मरीज़ बाआसानी अद्वियात खरीद कर अपनी ज़िंदगी बचाकर ज़िंदगी सुकून से जी सकें। कैमरा टीम बिहाड़ी में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर रैली का इनेकाद किया गया और भारतीय मुजालिम की मजम्मत की। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने की। बिहाड़ी में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने की। रुकन पंजाब असम्बली मियां साकिब खुर्शीद और दीगर हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा है कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर 5 अगस्त तारीख के स्याह तरीन दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करके कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म की है। आज भी कश्मीर की धरती शोधा के खून से लाल हो रही है। तहसील मीहर में पानीकोट के खिलाफ धामरा व सैयदपुर शाख, खड़ा शाख, साले शाख, माडू शाख, मसाड़ शाख, ककोलवा समेत तमाम नहरों और शाखों में पानी की बिलाजवाज किल्लत के खिलाफ अवामी तहरीक तहसील मीहर की जानिब से जिला दादू के सदर एडवोकेट नजीब महीसर, जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट जुल्फकार चांडियो, तहसील सदर एडवोकेट मंसूर चांडियो, एडवोकेट शबीर खोसू, एडवोकेट मंसूर रफीक जतोई, एडवोकेट दाद मोहम्मद मक्सी, एडवोकेट फयाज हैदर शेख, एडवोकेट इम्तियाज महीसर, रुस्तम अली सरगानी, इम्तियाज सियाल और दीगर की रहनुमाई में अवामी लायर्स फोरम ऑफिस मीहर से आज़ाद प्रेस क्लब मीहर तक एहतजाजी मुजाहरा करके सख्त नारेबाजी की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि जुल्म की इंतहा है कि इस महंगाई के दौर में हमारे लाखों रुपए के बोए हुए बीज पानी न होने के बायस जल रहे हैं। गरीब किसानों और आबादगारों की हजारों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है, इनकी कोई भी मदद करने वाला नहीं। उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, महकमा आबपाशी के वजीर, चीफ इंजीनियर समेत दीगर काम से मुतालबा किया है कि गैर जिम्मेदार रिश्वतखोर आबपाशी अमलदारों के खिलाफ एक्शन लेकर सख्त कार्रवाई की जाए। SHO मांगा मंडी शबीर अवान की अपनी टीम के हमरा कार्रवाई, रॉबरी, मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। SP सदर की हिदायत पर ASP रायविन की जेर निगरानी SHO मांगा मंडी ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिलों की चोरी डकैती में मुलव्वस गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान की शिनाख्त एहसान, अल्ताफ और तारिक के नाम से हुई है। मुलजमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और थाना सुंदर में मतूब थे। मुलजिम के कब्जा से चोरी शुदा मोटरसाइकिल और हजारों रुपए नकदी बरामद। मुलजमान के कब्जा से 3 अदद पिस्तौल और गोलियां भी बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। SP सदर का कहना था कि मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। मलिक सरफराज खोखर ऑफ पांडुकी, मलिक जिशान खोखर ऑफ पांडुकी के हमरा नवीज सरफराज में अदील भट्टी, फखर खोखर की चीफ ऑफ लेस्को शाहिद हैदर से तफसीली मुलाकात। गांव पांडुकी के बिजली के मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। इंशाल्लाह जल्द मलिक सरफराज खोखर की क़यादत में गांव पांडुकी के तमाम मसाइल का अजाला कर दिया जाएगा। शादी के बाद शोधा पुलिस को इनकी कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद। तकरीब में शोधा के बच्चों, पुलिस अफसरान, शहरियों ने शोधा पुलिस की याद में शमाए रोशन की। मजीद जानते हैं ZTV ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट में। शादी के बाद शोहदा पुलिस को इनकी कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शोहदा के बच्चों, पुलिस अफसरान, शहरियों ने शोहदा पुलिस की याद में शम्में रोशन की। तकरीब में शोहदा की दर्जात बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। तकरीब का मकसद आवाम की जानो माल का हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों की याद ताज़ा करना है। ASP बंगल खान का कहना है कि शोहदा पुलिस हमारा फ़ख्र हैं, जिन्होंने अपना आज कुर्बान करके हमारा कल महफूज बनाया। रहीम खान पुलिस के 42 बहादुर सपूत, जिन्होंने कच्चे में अमन और अमान कायम रखने के लिए जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहादत हासिल की। मज़ीद उनका कहना था कि पंजाब पुलिस और पाकिस्तान की आवाम अपने शोहदा के हमरा खड़ी है और इनकी कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं करेगी। शहीद लाहौर से सजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर प्रेस क्लब के सामने थाना रायविन चौकी अड्डा प्लाट गांव तारुगल नौशा दरबार के इलाके में मेर खाविद मोहम्मद खालिद एक गरीब बेगुनाह और मासूम मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। इसके बगैर मेरा कोई कमाने वाला नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। शदीद महंगाई में जिंदगी गुजारना कितना दुश्वार है। थाना चौकी रायविन अड्डा प्लाट के पुलिस एहलकार महमूद असगर और इमरान डार ने बगैर किसी जुर्म और मुकदमा के गिरफ्तार करके शदीद तशद्दुद से
10 जून 2024 को कत्ल कर दिया। मैं बेवा और हामली हूँ। मेरे बच्चे बाप की शफकत से महरूम हो गए हैं। अब हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। खाने के लाले पड़ चुके हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान से दर्दमंदाना अपील करती हूँ कि कातलों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मुझे फौरी इंसाफ दिया जाए, वरना मैं बच्चों समेत खुदकुशी कर लूँगी। अहमदपुर शर्किया से सैयद आमिर हुसैन बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक अहमदपुर शर्किया तहसील इंतजामिया की ज़ेर तमाम योम सहसाल कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली में रेस्क्यू 1122 समेत मुख्तलिफ मुकाता फिक्र के अफराद ने शिरकत की। तहसील इंतजामिया के ज़ेर तमाम एडमिनिस्ट्रेटर और असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली जताला की ज़ेर क़यादत एक रैली निकाली गई, जिसमें कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए शरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। रैली में म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और एहलकारों के अलावा MPA साहबजादा गजीन अब्बासी के नुमाइंदों, रेस्क्यू 1122 सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। लाहौर सजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक यौम सहसाल कश्मीर के हवाले से अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर इत्तलाआत नशरियात उस्मा बुखारी खिताब कर रही हैं। इनका कहना है कि 5 अगस्त 2019 कश्मीर के कानूनी हैसियत पर भारत का गैर कानूनी इक़दाम नामंजूर और काबिल मज़म्मत है और कश्मीरियों के हक खुदरातियत पर गहरा वार है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात उस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी के मुकम्मल सियासी और अखलाकी मुकम्मल हमायत करते हैं, क्योंकि कश्मीरी हमारे मुसलमान भाई हैं। लाखों कश्मीरी नौजवानों ने आज़ादी के लिए जानें कुर्बान की हैं। कश्मीरी आज भी भारतीय बर्बरियत जबर जुल्म के सामने सीसा फलाई दीवार की खड़े हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और बनेगा पाकिस्तान। खबर शामिल कहते हैं खानेवाल से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर सब्जी मंडियों में अवाम दोस्त सेल काउंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। डिप्टी कमिश्नर अवाम दोस्त काउंटर इफ्तिताह कर दिया, जहां पर सब्जियां दिन भर शहरियों को सस्ते दामों मैसर होंगी। खानेवाल से देखते हैं ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को रिलीफ देना शुरू कर दिया। अवाम दोस्त सेल काउंटर पर शहरियों को होलसेल रेट पर सब्जियां और फल दस्तयाब होंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने अवाम दोस्त सेल काउंटर का मुआयना किया। सब्जी मंडी के दौरा पर एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनसिपल कमेटी, एतजाज़ अंजुम, मार्केट कमेटी और म्यूनसिपल कमेटी अफसरान भी उनके हमरा थे। चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को सहूलत के लिए अवाम दोस्त सेल काउंटर काम किए गए हैं। ये अवाम दोस्त काउंटर जुमेरात वाले दिन से चालू है और इसके अंदर ये है कि हमने इसको मज़ीद आज इम्प्रूव भी कुछ किया है। इसके अंदर हमारा मोटो ये है कि जी सब्ज़ी मंडी के ये बिल्कुल साथ है, जो ज़रूरी अजनास हैं बड़ी लोगों की पहुंच में मज़ीद लाने के लिए और एक आवाम दोस्त कदम के तौर पे यहाँ पर ये जो अवेलेबिलिटी है ये थोक के रेट के ऊपर, होलसेल के रेट के ऊपर ही हम इसको अवेलेबल करवा रहे हैं, ताकि आवाम इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के एक आवाम दोस्त विजन के ऐन मुताबिक है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम दोस्त सेल काउंटर पर आवाम के लिए सब्जियों की कीमतों में बड़ी कमी करके फ़रोख्त करना शुरू कर दिया है, जहां पर शहरी अदरक, लहसुन, टमाटर, आलू, प्याज, करेला और दीगर सब्जियां सस्ते दामों खरीद सकते हैं। कि इस वक्त गला सब्ज़ी मंडी में जितनी भी अजनास हैं सब्ज़ी की सूरत में, उन सब की कीमतें इस काउंटर पर कम से कम 2 से 3 रुपये फ़ी किलो कम हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ हर चीज़ परचून लेवल पर जो है थोक रेट के हिसाब से मिल रही है। ये एक इसका खुशाइंद पहलू है। दो सेल काउंटर के मंडियों में क़याम का मकसद शहरियों को सब्जियों फलों का बिला तातुल सप्लाई को यकीनी बनाना है। असिस्टेंट थाना सिटी की मंशात फरोशों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। SHO थाना सिटी और इनकी टीम ने बदनाम ज़माना मंशात फरोश इरम शहजादी वालिद गुलाम अब्बास उर्फ साइमा बीबी को गिरफ्तार करके 5 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज किया, जबकि शहर में हवाई फायरिंग करके खौफ फैलाने वाले मुलजिम असद सजाद वल्द खिजर हयात को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। खबर शामिल करते हैं जिला दादू से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल रहमान चालू की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मीहर के एक गांव में जुल्म की इंतहा हो गई। मीहर के करीब बासर की जानिब से बेजुबान जानवर गधे की टांग काट दी। ऐसे वाक़े के खिलाफ मीहर के करीब गांव सिंधी बटरा के रिहायशी मोहम्मद खोसू ने अपने गूंगे बेटे अली असगर खोसू के साथ आज़ाद प्रेस क्लब मीहर में एहतजाज करते हुए और इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि गांव सिंधी बटरा में बासर वडेरे अब्दुल रज़ाक मलिक और इसके बेटे पप्पू मलिक ने मेरे
गूंगे बेटे अली असगर खोसू जो गधा गाड़ी चला रहा था गुजर सफर करता है। गुज़िश्ता रात गधा बासर के बाड़े में चला गया, जिसके बाद इसने तैश में आकर गधे की टांग काट दी है। उन्होंने कहा है कि गधे को सिंधी बटरा पोस्ट पर छोड़ आए हैं, मगर पुलिस मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। उन्होंने IG सिंध SSP दादू से मुतालबा किया है कि बेजुबान गधे की टांग काटने वाले बासर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए।